हेलो एंड वेलकम। तो आखिरी क्लास में हमने सैयद डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग लोधी डायनेस्टी करेंगे। द लोधीज़, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। बहलोल लोधी was the founder of first Afghan ruling house of Delhi. The Lodhis constituted a clan of the Ghazni tribe of the Afghans. Bahlol's grandfather, Behram, was originally a merchant who migrated to Multan during the reign of Sultan Firoz Tughlaq and took up service under the provincial governor. Behram had 5 sons, two of whom, Malik Sultan Shah and Malik Kala, the father of Behlol, attained some prominence. Malik Kala defeated Jasrat Khokhar and set up an independent principality for himself in northwestern region, while Malik Sultan Shah received appointment as a governor of Sirhind with the title of Islam Khan in 1419 from Khizr Khan Sayyid of Delhi. Malik Kala was killed by his enemies and orphaned Bahlol, known by pet name of Ballu in the childhood, was brought up with great affection and care by his uncle Islam Khan at Sirhind. Bahlol grew up to be a brilliant youth possessed of ambition and fine qualities of martial leadership. Islam Khan gave his daughter in marriage to Bahlol, made him the commander of 12,000 and nominated him as his successor. Islam Khan fell fighting the Mughals in 1431 while and was succeeded by Bahlol Lodi as governors of Sirhind. By his military prowess and diplomacy, Bahlol extended his sway over the fiefs of Dipalpur, Lahore, Multan and secured the recognition of the position from Sultan Muhammad Sayyid of Delhi. The latter depended heavily upon him for the defense of his capital against his enemies. By the time Alauddin Alam Shah ascended the throne of Delhi, Bahlol had assumed role of popular leader of Afghan community, many of whose members held high offices and estates in northwestern India. Alam Shah could not pull on amicably with his all-powerful Wazir Hamid Khan, and having failed to control the situation in Delhi, retreated to his personal estate at Badaun. Bahlol Lodi entered the capital at the head of a large army with the declared object of restoring law and order. After some time, he imprisoned the Wazir Hamid Khan by a stratagem and ascended the throne of Delhi on April 19, 1451 with the apparent consent of Alauddin Alam Shah Sayyid, who was content with a fief of Badaun. तो क्या कहा जा रहा है कि बहलोल लोधी जो हैं वो अफ़गान रूलिंग हाउस ऑफ दिल्ली के पहले अफ़गान रूलिंग हाउस ऑफ दिल्ली के फाउंडर थे। लोधीज़ जो है वो गिलज़ाई ट्राइब को बिलोंग करते थे अफ़गान्स के। बहलोल के जो दादा थे बहराम, वो ओरिजिनली एक मर्चेंट थे जो मुल्तान आ गए और मुल्तान आकर के वो जो है सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के समय में वो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर के सर्विस में वो जो है आ गए मुल्तान। बहराम के 5 बेटे थे, जिसमें से 2 मलिक सुल्तान शाह और मलिक कला जो है वो बहलोल के पिता थे। ये जो हैं ये दोनों थोड़े इम्पॉर्टेंट हुए, थोड़ी इनकी चर्चा होती है। मलिक कला जो है उन्होंने जो है जसरत खोखर को हराया भी था और खुद के लिए नॉर्थ वेस्ट में एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बनाई, जबकि मलिक सुल्तान शाह जो कि मलिक कला के भाई थे वो जो हैं वो सरहिंद के गवर्नर बन गए। इस्लाम खान की उपाधि दी इनको खिज़्र खान सैयद ने दिल्ली के। मलिक कला जो हैं उनको जो है उनके एनिमीज़ ने मार दिया और बहलोल जो है वो क्या हो गए, वो अनाथ हो गए। बहलोल के बचपन का नाम बल्लू था और बहलोल को जो है उनके अंकल, उनके चाचा इस्लाम खान ने जो है वो ले लिया और उसको बहुत ही प्यार से लाड से जो है उनको बड़ा किया। बहलोल जो है वो जब बड़े हो रहे थे तो एक ब्रिलियंट कमांडर बने, उनके पास बहुत सारे एम्बिशंस थे और बहुत अच्छी मार्शियल क्वालिटीज़ थी। इस्लाम खान ने अपनी बेटी की शादी बहलोल से करवा दी
और बहलोल को जो है 12,000 का कमांडरशिप भी दिया और बहलोल को ही अपना सक्सेसर भी नॉमिनेट किया। इस्लाम खान जो है वो मुग़ल्स से लड़ते लड़ते 1431 में मारे गए। इस समय मुग़ल्स जो हैं वो फरगाना और समरकंद वाले एरिया में मुग़ल्स हैं, तो उनसे लड़ते लड़ते जो है इस्लाम खान जो हैं वो मर गए। और फिर उसके बाद जो है बहलोल लोदी जो है वो सरहिंद के गवर्नर बन गए। बहलोल लोदी में मिलिट्री प्रोवेस, डिप्लोमेसी, ये सब बहुत कूट के भरी हुई थी, जिस वजह से वो जल्द ही दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान, इन सारे को भी जो है वो अपने अंदर इन्होंने कर लिया। सुल्तान मोहम्मद सैयद जो दिल्ली के थे, उनसे जो है इन्होंने ये चीज़ें अपने अंदर कर लिया, यहाँ के ये गवर्नर बन गए। और सुल्तान मोहम्मद सैयद जो है वो इन पर हेविली डिपेंडेंट थे। इस समय तक क्या हुआ कि अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो थ्रोन पर आ गए दिल्ली के। बहलोल जो है उन्होंने क्या किया, वो एक पॉपुलर लीडर बन गए अफ़गान कम्युनिटी के, और मैनी ऑफ हुज मेंबर्स हेल्ड, और अफ़गान कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो हाई ऑफिसेस और एस्टेट्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हेल्ड किया करते थे। आलम शाह जो है उन्होंने जो है जो अब दूसरे जो सुल्तान बने हुए थे वो जो है वो अपने पावर को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आलम शाह के जो वज़ीर थे वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि आलम शाह जो है वज़ीर से परेशान होकर के क्या करते हैं, आलम शाह जो है वो बदाऊं चले गए। बहलोल लोदी जो हैं वो कैपिटल घुसते हैं एक लार्ज आर्मी के साथ और बताते हैं कि जो ये आलम शाह के वज़ीर ने जो लॉ एंड ऑर्डर में जो गड़बड़ क्रिएट किया है तो वो मुझे रीस्टोर करना है, ये कह करके घुसते हैं। और फाइनली जो है हामिद खान को जो है, जो कि आलम खान के वज़ीर हुआ करते थे, उनको इम्प्रिजन कर देते हैं और उनको जो है क्या करते हैं कि उसके बाद जो है खुद दिल्ली के थ्रोन पर बैठ जाते हैं। और माना जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह ने भी इसकी रजामंदी कर दी थी, वो बदाऊं के एक छोटे से टुकड़े से खुश थे। Lodi dynasty, founded by Bahlol, produced 3 sultans who ruled over Delhi for 75 years. Bahlol Lodi enjoyed a long reign of 35 years as a shrewd politician who well understood the turbulent character of his people, did not assume dictatorial attitude towards his Afghan colleagues and followers. Instead, he shared power with Afghan amirs, treated them with respect, and gave them an impression that their voice counted in all the important matters of the state. Royal court of Behlol Lodi was quite different in composition and character from the Turkish sultans of Delhi. He did not occupy his seat on elevated throne in traditional style of medieval monarchs. Instead, he sat on the carpet surrounded by his prominent nobles and behaved in such a way as to show that he had been elected by his own people, and he held the royal prowess at their pleasure. The Sultan was accorded the status of primus inter pares अमंग द अफ़गान नोबल्स, मतलब उन सारे नोबल्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये नोबल्स में ही से ही है। अफ़गान मोनार्की ऑफ दिल्ली वॉज देयर फोल इन रियलिटी अ फ्यूडलिस्टिक ट्राइबल ओलिगार्की. Behlol Lodi distributed all the important civil and military offices among his trusted Afghan amirs. He parceled out his dominance into small jagirs, estates, and handed them over to his kinsmen and other Afghan amirs. These nobles enjoyed autonomy in the administration of their assignment and recruited their own feudal armies, collective strength of which exceeded the might of royal army stationed in Delhi. All the Afghan immigrants from their homeland were received with an open arm and extended patronage by the state through the grants of land and government service. Behlol Lodi thus attempted to Afghanize the administration as far as possible. He met with opposition from Turkish and other non-Afghan elements, which was suppressed with an iron hand. Behlol Lodi established law and order with his small tribal kingdom. With the active cooperation and support of Afghan nobles, he brought Ahmad Ali Khan of Mewat into subjugation and annexed 7 of his parganas to Delhi. He led successful expedition against Darya Khan of Sambhal, Isha Khan of Koel, Mubarak Khan of Sakit, Raja Pratap Singh of Kampila and Patiali, and Qutb Khan of Rapri, all of whom were permitted to retain their position as feudatory chieftains. He suppressed
revolts in Multan, Sirhind, and also brought the refractory zamindars of Doab under his effective control. तो लोदी डायनेस्टी जो है वो बहलोल लोदी ने फाइंड किया। इसमें 3 सुल्तान ने 75 साल तक रूल किया, जिसमें सबसे अधिक समय जो है 39 साल तक बहलोल लोदी ने ही रूल किया। बहलोल लोदी समझते थे कि लोगों का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, इसीलिए कभी इन्होंने सुल्तान वाले एटीट्यूड नहीं रखे। ये जो है ये अमीर्स को जो है कैसे ट्रीट करते थे, रिस्पेक्ट के साथ, एंड गेव एन इम्प्रेशन कि अमीर्स का जो वॉइस है, अमीर यानी कि नोबेल, तो उनका जो सोचना है वो सब जो है स्टेट के मैटर्स में इम्पोर्टेंस रखता है। ये जो है एक कोई बड़े से तख्त पे नहीं बैठा करते थे, बट कारपेट पे बैठा करते थे बाकी अमीरों के साथ। ये जो है ये ऐसे बिहेव करते थे कि ये जो है इनको लोगों ने इलेक्ट किया है। इस समय तक फ्यूडलिज्म जो है अपनी चरम सीमा पे थी, तो इन्होंने जो है बहुत सारे अफ़गान लोगों को जो है, नोबेल्स को जो है, उनको क्या दिया था, गवर्नरशिप दे दिया अलग अलग जागीर्स का, और फिर उनको जो है वहाँ पर ही उनको बना करके रखा। अपने रिलेटिव्स को भी इन्होंने बहुत सारे पोजीशंस दिए। नोबेल जो है वो अपने अपने जगह पर अच्छा खासा पावर इन्जॉय करते थे, इंडिपेंडेंस इन्जॉय करते थे, और अगर सारे नोबेल्स के आर्मी को मिला दिया जाए तो दिल्ली की आर्मी पर वो भारी पड़ती थी। इनको कुछ कुछ ऑपोजिशन जो है वो नॉन अफ़गान लोगों ने किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अफ़गानाइज कर रहे थे पूरे के पूरे एम्पायर को, है ना। इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है अफ़गान को दे रहे थे, अफ़गान नोबेल्स थे इनके। तो नॉन अफ़गान ने इनको जो है कोशिश किया कि इनके खिलाफ़ जो है रिबेल कर सके, लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं हुए। और इन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया और बहुत सारे रीजन को अपने कंट्रोल में भी लाए। जैसे अहमद अली खान को, मेवात के अहमद अली खान को सप्रेस किया, दरिया खान जो संभल के थे उनको सप्रेस किया, राजा प्रताप सिंह जो कंपिला के थे उनको सप्रेस किया, और ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने सप्रेस किया। रिफ्रैक्टरी ज़मींदार को अपने कंट्रोल में लाए और सबको जो है ये फ्यूडिटरी चीफ्टन्स बना करके इन्होंने कहा कि आप अपने एरिया में जो है इंडिविजुअली यू कैन रूल। नाउ Behlol Lodi realized his limitations as a regional ruler of the country and refrained from adopting an aggressive attitude towards the powerful neighboring chief. Nevertheless, he had to wage a long and drawn-out war against Sultan Mahmud Shah of Sharki dynasty of Jaunpur, who disputed his claim to the throne of Delhi. It was because Mahmud Shah was the son-in-law of Alauddin Alam Shah Sayyid, the ex-Sultan of Delhi, and his Sayyid wife instigated him to avenge the disposition of his father. After Mahmud Shah's death, the successor Hussain Shah also continued the struggle against Behlol Lodi for many years. Jaunpur was ultimately conquered by Behlol, but the latter did not annex it to Delhi. Instead, he placed his eldest son Barbak Shah on the throne of Jaunpur and retained the separate identity of the kingdom in close association with Delhi, thus creating a fraternity of two Afghan kingdoms. The success of Behlol's enterprise against Jaunpur frightened the chieftains of Dholpur, Kalpi, Bari and Alipur to acknowledge the suzerainty of Delhi. Behlol led a successful military expedition against Gwalior and received a tribute of 80 lakh tanka from its ruler Man Singh. While returning from Gwalior, he was taken ill and expired en route to Delhi in July 1489. He was a just monarch who ruled over his subjects with moderation. तो बहलोल लोदी जो है उनको पता था कि वो एक रीजनल रूलर है, तो वो अगल बगल के पावरफुल नेबरिंग चीफ से अगर भिड़ेंगे तो उनका भी रूल एंड हो सकता है। लेकिन उनको जो है महमूद शाह जो है सुल्तान महमूद शाह से लड़ना पड़ा, जो कि जौनपुर के रूलर थे, क्योंकि सुल्तान महमूद शाह जो हैं वो दरअसल में अलाउद्दीन आलम शाह के जवाई हुआ करते थे। और महमूद शाह की जो बेगम थी, जो वाइफ थी उनकी, तो वो उनको हमेशा जो है ना बताती थी कि क्योंकि उनके पिता जो है वो पुराने सुल्तान थे दिल्ली के और उनके पिता से थ्रोन ले लिया गया, तो वो हमेशा महमूद शाह को कहती थी कि वो जो है इसका बदला ले।
महमूद शाह जो है वो फाइनली जब महमूद शाह मर गए तो महमूद शाह के मरने के बाद जो उनके बेटे हुसैन शाह थे वो भी हमेशा बहलोल लोदी से भिड़ंत उनकी होती रही और अल्टीमेटली जो है जौनपुर में बहलोल लोदी को लड़के जौनपुर को कैप्चर करना पड़ा। पर जौनपुर को जीतने के बाद भी उन्होंने दिल्ली में जौनपुर को नहीं मिलाया। जौनपुर में अपने सबसे बड़े बेटे बहलोल लोदी ने अपने सबसे बड़े बेटे बरबक शाह को जो है जौनपुर का राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया और साथ साथ 2 अफ़गानी किंगडम जो है इस तरह से शुरू हो गया। एक तो जो दिल्ली में चल रहा था और एक जो जौनपुर में चल रहा था बरबक शाह के अंदर। बहलोल के इस चीज़ से, जौनपुर पर जीत से, जो अगल बगल के चीफ्टन्स थे धौलपुर, कल्पी, बरी और अलीपुर के, वो लोग थोड़ा डर गए कि दिल्ली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली जो है वो जो है हमसे लड़ सकती है। तो उन्होंने जो है दिल्ली को मान लिया कि दिल्ली हमसे सुपीरियर है। बहलोल ने जो है एक मिलिट्री एक्सपीडिशन ग्वालियर के भी अगेंस्ट किया और ग्वालियर से उनको जो है 80 लाख टंका मिला ग्वालियर के राजा मान सिंह से। जब वो ग्वालियर से लौट ही रहे थे तो रास्ते में वो बीमार पड़ गए और दिल्ली आने से पहले ही क्या हो गया कि उनकी डेथ हो गई। वो जो है एक न्यायप्रिय सुल्तान माने जाते हैं और उन्होंने जो है अपने प्रजा के साथ प्रजा को जो है बड़े अच्छे से रूल किया। अब आते हैं सिकंदर लोदी पर। बहलोल के 9 बेटे थे। Nizam Khan was elected by the Afghan nobles as the Sultan of Delhi. He ascended to the throne on July 17, 1489 with the title of Sikandar Shah. उनके 9 बेटे में अफ़गान नोबल्स ने जो है निज़ाम खान को चुना नया सुल्तान। 17 जुलाई 17 जुलाई 1489 में जो है ये जो है क्या नाम है सिकंदर लोदी जो है, एक्चुअल नाम इनका निज़ाम शाह था। तो ये जो है ये राजा बनके नए सुल्तान बनके जो है आए। इन्होंने सिकंदर शाह की उपाधि ली। A tall and handsome man of 31, he was the son of Hindu goldsmith daughter, a disability which provoked opposition to his claim to royalty by a strong lobby in the court. A number of his brothers, nephews and other kinsmen held big fiefs who posed a potential danger to his throne. Sikandar Lodi handled the situation tactfully and with courage. He pacified most of them, suppressed some, and through the display of religious bigotry towards his Hindu subject, established his reputation as a staunch Muslim ruler, in no way inferior to a pure Afghan. Even otherwise, he was the most capable, efficient, and powerful of the all 3 Lodi sultans of Delhi. He shifted his capital in 1504 to the village of Agra on the banks of Jamna, which was developed into beautiful town during his period of rule. Sikandar Lodi imparted a bit of royal glory to the court, occupied his seat on an elevated throne, and did not allow the old grandees of the seat of the kingdom to claim equality with him. His elder brother Sultan Barbak Shah of Jaunpur preferred his claim to the Sultanate. He was defeated by Sikandar Lodi at Kannauj, then pardoned and given back his kingdom in subordination to Agra. Barbak Shah proved, however, an incompetent ruler who failed to keep the disaffected nobles of his court under his firm control. He was therefore deprived of all his possessions after some time, and Jaunpur was annexed to Agra. A party hatched a conspiracy to dethrone Sikandar Lodi and install his younger brother Fateh Khan on the throne. To his good fortune, Sikandar Lodi got wind of it and took stern action against them. 22 Afghan officers were dismissed and severely punished. It enhanced the reputation of Sikandar Lodi and established his firm hold on the throne. तो क्या हुआ, सिकंदर लोदी की माँ जो है वो हिंदू थी। इस वजह से बहुत कोई जो है उनको इनकेपेबल मानते थे कि ये एक प्रॉपर अफ़गान नहीं है और दूसरे लोग भी क्लेम करने लगे थ्रोन पर। ऐसे में सिकंदर लोदी ने जो है क्या किया, कुछ लोगों को इन्होंने सप्रेस कर दिया, कुछ को पेसिफाई किया कुछ चीज़ें दे करके, और बाकी लोगों को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया रिलीजियस बाइगॉट्री दिखा करके, मतलब धर्म का पक्षपात दिखा करके कि हिंदू सब्जेक्ट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और फिर मुस्लिम सब्जेक्ट्स को जो है वो बेटर ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने दिखाया कि ये कट्टर मुसलमान है। तो इन्होंने ऐसे करके लोगों को पेसिफाई कर दिया। फिर सिकंदर लोदी ने क्या किया कि ये जो है इन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सिकंदर लोदी विच वी नीड टू रिमेंबर।
है ना, कि कैपिटल किसने शिफ्ट किया दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली से आगरा, तो सिकंदर लोदी ने। आगरा जो है एक विलेज था और इसको फिर डेवलप किया गया इनके पीरियड में। अब सिकंदर लोदी जो है वो अपने पिता की तरह इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे कि सुल्तान जो है वो लोगों से, वो अपने मतलब अमीर से इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है ये थ्रोन पर बैठने लगे और दूसरे नोबेल्स को अपने से इक्वालिटी पर बिल्कुल ट्रीट नहीं करते थे। ये खुद को स्ट्रॉन्गर मानते थे। उसी वक्त क्या हुआ कि सिकंदर लोदी के जो बड़े भाई थे सुल्तान बरबक शाह जौनपुर के, उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने जो है वो कहते थे कि मैं थ्रोन पर होना चाहिए क्योंकि मैं तो बड़ा बेटा था, ऐसा करके। तो सिकंदर लोदी ने जो है उनके साथ सिकंदर लोदी की भिड़ंत हुई और सिकंदर लोदी ने जो है बरबक शाह को हरा दिया। लेकिन हराने के बाद भी उन्होंने बरबक शाह को माफ़ कर दिया और बरबक शाह को वापस से जौनपुर का जो है जौनपुर की मतलब जौनपुर का राज्य सौंप दिया। लेकिन बरबक शाह जो है एक इनकॉम्पिटेंट रूलर हो गए और वो जो है अपने नोबेल्स को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनको जो है फिर बाद में क्या हुआ कि आगरा ने जो है एनेक्स कर लिया जौनपुर। तो अब जौनपुर भी आगरा के अंदर आ गया। एक ग्रुप थे, एक पार्टी थी नोबेल्स की जो कि सिकंदर शाह के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे और फिर सिकंदर शाह को हटा के फतेह खान को थ्रोन पर लाना चाहते थे। बट सिकंदर शाह की अच्छी किस्मत के हिसाब से उनको जो है इन बातों की हवा लग गई कि उनको मार करके फतेह खान को रूलर बनाना चाहते हैं। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे थे उनके खिलाफ जो है बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। 22 अफगान ऑफिसर्स को जो है डिसमिस कर दिया गया और बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया गया। इससे जो है सुल्तान को लेकर के डर जो है वो वापस से लोगों के मन में बैठ गया। सिकंदर लोदी जो है उन्होंने कोशिश किया कि वो जो है एब्सोल्यूट मोनार्की का भी कॉन्सेप्ट रिवाइव कर सके और सेंट्रल अथॉरिटी जो है सारा अपने हाथ में ले। उन्होंने एफिशिएंट एस्पाइनेज सिस्टम रखा ताकि उनको मतलब जासूसों का सिस्टम रखा ताकि उनको ना हर बात की खबर लगी रहे, कौन उनके अगेंस्ट है कौन उनके साथ है। और जो है उन्होंने सर्विसेज में भी डिसिप्लिन को वापस से डालने की कोशिश की और लॉ एंड ऑर्डर को वापस से मेंटेन करने की कोशिश की। फ़िरोज़ तुगलक की तरह ही इन्होंने जो है इस्लामिक लॉ को इंट्रोड्यूस किया। अभी फ़िरोज़ तुगलक और सिकंदर लोदी की सिचुएशन इस मैटर में सेम थी क्योंकि दोनों पर लोग शक कर रहे थे क्योंकि दोनों की जो माँ थी वो हिंदू थी, तो शक कर रहे थे कि ये जो है ये प्रॉपर इस्लामिक रूल के हिसाब से करेंगे कि नहीं। इसलिए दोनों जो है वो रिलीजियस बाइकॉट की काइंड ऑफ इनका नीड बन गया था, इनकी ज़रूरत थी वैसा शो करने की ताकि ये जो है सुल्तान बने रहे। सिकंदर लोदी एक कैपेबल मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने जो है अग्रेसिव इंटरवेंशन की पॉलिसी जो है वो शुरू की क्योंकि ये तो काफ़ी ये कैपेबल थे। तो नेबरिंग स्टेट्स को जो है इन्होंने जो है अपने अंदर करने की कोशिश की। 1494-95 में इन्होंने जो है बिहार को कैप्चर किया और फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी कर ली बिहार के रूलर अलाउद्दीन हसन शाह के साथ। ही सब्जुगेटेड हिंदू चीफ्स ऑफ ढोलपुर। हिंदू चीफ जो ढोलपुर के थे, नारवाड़ के थे और चंदेरी के थे, उनको जो है इन्होंने अपने से नीचे कर दिया, अपने से हराया और फिर कैंपेन ले गए। कैंपेन अगेंस्ट गुजरात एंड मालवा वेयर नॉट सक्सेसफुल। ये सारी धौलपुर, मारवाड़ और चंदेरी के तो कैंपेन्स इनके सक्सेसफुल रहे, इनके रूलर्स को ये सब्जुगेट करने में सक्सेसफुल रहे, पर मालवा और ग्वालियर के अगेंस्ट ये सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर ये बीमार पड़ गए और 21 नवंबर 1517 में जो है ये बीमारी से मर गए। इसके बाद इब्राहिम लोदी। अफगान मोनार्की वॉज वीकेंड बाय फिसिपेरियस एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज of its otherwise brave and freedom-loving grandees. They were ever eager to reassert the influence in the state affairs. Therefore, on the death of Sikandar Lodi, they decided to parcel out his territory possessions into 2 kingdoms to be headed by first 2 of the 5 sons. The eldest prince Ibrahim Khan was to inherit the kingdom of Delhi and Agra, while his younger brother Jalal Khan was to rule the eastern and southern part of the Sultanate from Kalpi to Jaunpur. Accordingly, Ibrahim, styled as Ibrahim Shah, was coronated at Delhi, and Jalal Khan, accompanied by his followers and army, left for Jaunpur. Soon afterward, some prominent nobles realized the folly of their decision, which stood to weaken the Afghan hegemony in the northern India.
and recognized Ibrahim Lodi as the sole monarch of the entire Afghan kingdom. Albeit the mischief had been done, and Jalal Khan, though not successful in acquiring control of Jaunpur, crowned himself as the Sultan and with the title of Jalaluddin at Kalpi, of which he had been the governor during the reign of his father. It led to a civil war between two brothers in which Jalal Khan was defeated. He fled from Kalpi but fell into the hands of Gonds, who passed him on to Delhi. He was sent as a captive to Hansi but murdered on the way by secret orders of Sultan Ibrahim. तो इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिकंदर लोदी के मरने के बाद ये जो अफ़गान नोबेल्स थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इनके हाथ से पावर सारा सिकंदर लोदी ने छीन लिया, क्योंकि वो धीरे धीरे एब्सोल्यूट मोनार्की बन गए। तो सिकंदर लोदी के मरने के बाद इन्होंने सोचा कुछ ऐसा करो कि नया राजा जो आए वो इतना पावरफुल ना रहे। तो क्या किया, इन्होंने 2 पावर सेंटर बनाया, एक दिल्ली और आगरा, जहाँ पर सिकंदर लोदी के बड़े बेटे इब्राहिम लोदी रूल करेंगे, और दूसरा पावर सेंटर इन्होंने बनाया जलाल खान को। जलाल खान जो है इब्राहिम लोदी के यंगर ब्रदर हैं, और इनको रूल करने के लिए कहा कि ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो है कल्पी से लेकर जौनपुर वो रूल करेंगे। इब्राहिम को इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली में राज्य अभिषेक कराया गया, और जलाल खान को जो है वो जौनपुर चले गए अपने राज्य अभिषेक के लिए। लेकिन इसी वक्त नोबेल्स को पता चला कि वो कितना बेवकूफ़ डिसीजन ले रहे हैं, इससे तो अफ़गान वीक पड़ जाएंगे नदर्न इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं इब्राहिम लोदी ही जो है यही मोनार्क है, ऐसा वैसा करके। लेकिन जलाल खान जो है वो तो उनको काम तो हो गया था, गड़बड़ तो कर दिया था। तो जलाल खान जो है वो गए, उन्होंने कोशिश किया जौनपुर को कैप्चर करने का, बट हो नहीं पाया। तो उन्होंने जो है कल्पी में जाकर के खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, जहाँ वो सिकंदर शाह के समय से ही रूल कर रहे थे। तो जब उन्होंने खुद को कल्पी का सुल्तान घोषित किया तो एक सिविल वॉर हो गया दिल्ली और कल्पी के बीच में, और जलाल खान को हरा दिया गया। जलाल खान वैसे भाग गए, बट गोंड्स ने जलाल खान को पकड़ लिया और दिल्ली भेज दिया। हंसी के पास जो है जलाल खान को जो है कैप्टिव बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, और फिर सीक्रेटली सुल्तान इब्राहिम ने जो है वो ऑर्डर दे दिया और वो मारे गए। मान Singh, the ruler of Gwalior, had offered asylum to the fugitive Jalal Khan for a short while. Ibrahim Lodi used it as a pretext to send a royal army comprising 30,000 horses and 300 elephants for the conquest of Gwalior. It laid siege to the fort, which dragged on for many months, necessitating the dispatch of reinforcement from Delhi. Man Singh died during the course of struggle, and his son and successor Vikramjit was hard pressed to acknowledge the suzerainty of Delhi. It was a great victory for Ibrahim Lodi, which made him overconfident of his military prowess. He committed the blunder of challenging Rana Sangram Singh of Mewar and sent a huge army for the conquest of Chittor. To his great horror and dismay, the army of Delhi was routed and annihilated by the valiant Rajputs. This gave a serious setback to the power and prestige of young Sultan and signaled revolt in various parts of his kingdom. His initial enthusiasm for military conquest being over, Ibrahim Lodi, an inexperienced and incompetent ruler that he was, became nervous and did not know how to restore law and order. He adopted a dictatorial attitude towards the old and experienced Afghan officers and annoyed his ministers and provincial governors by the display of irritable temper and arrogance. The latter looked upon the Sultan as their leader, primus inter pares, and not as the master. Therefore, they resented the autocratic behavior of Ibrahim Lodi and did not cooperate with him wholeheartedly in the solution of the administrative and political problem. Sultan lacked the power as well as the wisdom to deal with the refractory feudal lords. As a result, some hereditary provincial governors set themselves up de facto rulers of their possession and instigated others to do likewise. The revengeful and cruel treatment meted out by the Sultan to the disaffected noble who fell into the hands terrified the rest to carry the struggle to the bitter end. तो हम लोग पहले यहाँ तक कर लेते हैं। तो ऐसे में फिर क्या हुआ ना कि उनको तो इन्होंने इब्राहिम लोदी ने अपने भाई को मरवा दिया,
इब्राहिम लोदी के भाई को जो है जलाल खान को मान सिंह ने मदद किया था। मान सिंह ग्वालियर के रूलर हुआ करते थे और मान सिंह ने जो है जलाल खान को मदद किया था। बस इसी बुनियाद पर इब्राहिम लोदी ने जो है अपनी पूरी आर्मी भेज करके ग्वालियर को कॉन्कर कर लिया। ग्वालियर को जब कॉन्कर कर लिया तो इससे जो है ना वो पूरे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। मान सिंह जो है इसी स्ट्रगल के बीच में मान सिंह जो है वो मारे गए और मान सिंह के बेटे को जो है विक्रमजीत को बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बना करके दिल्ली की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करवाई गई। इब्राहिम लोदी इस जीत से इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने कहा अरे अब तो मैं मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट निकालूंगा। तो उन्होंने चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह को बिना देखे कि इनके पास कितना पावर है कितना नहीं है उन पर अटैक कर दिया। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया क्योंकि चित्तौड़ के लोगों ने तो बहुत बहादुरी से लड़ा और दिल्ली की सेना को खदेड़ भगाया। ऐसे में क्या हो गया कि इनके जो सारे जो सपने थे कि एम्पायर बनाना ये सारा तो ख़त्म हो गया, वो शट डाउन एट वन। और फिर इसके बाद जो है क्या हो गया कि जब देख लिया बाकी लोगों ने सुल्तान तो वीक है, उनको तो हराया जा सकता है, तो बाकी लोग भी जो है वो खुद को जो है क्योंकि अब नोबेल्स भी जो है ना वो सिकंदर शाह के बाद अब वो डिक्टेटोरियल पावर नहीं चाहते थे क्योंकि एक बार जो है ये इक्वालिटी के साथ रह चुके थे। ये जो है ये लीडर मान रहे थे सुल्तान को अपना मास्टर नहीं मानते थे। सिकंदर शाह वैसे भी थोड़े पावरफुल थे तो उन्होंने वो मास्टर बन के भी चल गए। उनके खिलाफ जिन्होंने भी एक्शन लिया उन्होंने उनके साथ स्ट्रिक्ट हैंड से उनको डील किया, लेकिन इनका नहीं चल पा रहा था और फिर भी ये जो है फालतू फेक एरोगेंस दिखा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनके जो एडवाइज़र्स थे या इनके जो नोबेल्स थे उन्होंने जो है इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। इस वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और क्या हो गया कि लोग जो हैं इनके जो नोबेल्स थे वो खुद को जो है वो काफ़ी इनसे गुस्सा थे, तो इस वजह से वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। और इन्होंने जो क्या किया कि कुछ लोग जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया तो सुल्तान ने उनके साथ ख़राब तरीके से ट्रीट किया। इस वजह से बाकी लोग भी जो है मोटिवेट हो गए कि हम भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि सुल्तान इज़ नॉट ट्रीटिंग अस एट इक्वल पावर। आगे बढ़ते हैं। Azam Humayun Sharwani, the old noble of Sikandar Lodi who had collaborated with Jalal Khan, submitted and received royal favors. After some time, he was imprisoned and liquidated by Ibrahim in spite of the fact that he had apprised the Sultan of the rebellious designs of his own Islam Khan, who died fighting the royal armies. तो क्या हुआ ना, अज़म हुमायूं सरवानी जो कि पुराने सिकंदर लोदी के पुराने नोबेल हुआ करते थे जिन्होंने जलाल खान को मदद किया था, उनको जो है बंदी बना लिया गया और मार दिया गया, जबकि उन्होंने सुल्तान को जो है खुद ही इन सारी चीज़ों के बारे में बता भी दिया था। और हु हैड अप्राइज द सुल्तान ऑफ द रिबेलियस डिज़ाइंस ऑफ हिज ओन सन, और सुल्तान के जो बेटे हैं इस्लाम खान वो जब बगावत करना चाहते थे तो उनके बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने हुमायूं को नहीं बख्शा। मियाँ भुआ द एजेड वज़ीर ऑफ सिकंदर लोदीज़ time was dismissed for expressing his views which was disagreeable to the Sultan. He died in royal prison. तो मियाँ भुआ जो कि वज़ीर थे सिकंदर लोदी के, उनको बस अपने कुछ व्यूज़ जो कि सुल्तान से मेल नहीं खाते थे, बस ये एक्सप्रेस करने के लिए उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। मियाँ हुसैन खान फरमूली जिन्होंने एक बार सुल्तान की एक बात नहीं मानी थी पर उनको जो है माफ़ कर दिया गया था, उनको जो है चंदेरी का गवर्नरशिप दे दिया गया। His uncalled for assassination in his sleep for the alleged agents of the Sultan convinced the old grandees of the Sultanate about the perfidious designs of Ibrahim Lodi, and they took up arms against him in self-defense. Khan-e-Jahan Lodi and Darya Khan Lodi, governor of Bihar, and their ringleaders, Nasir Khan Lohani, the governor of Gizapur, was ordered by the Sultan to march against Darya Khan, but he changed side and himself raised the standard of the revolt. तो क्या हुआ ना, ऐसे में जो कि बिहार के गवर्नर थे ये लोग भी रिवोल्ट जो है ना स्टैब्लिश कर रहे थे इब्राहिम के अगेंस्ट, क्योंकि इब्राहिम किसी को भी रिस्पेक्ट से ट्रीट ही नहीं करते थे, किसी के भी जो बातें हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, व्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो नासिर खान लोहानी को जो है, जो कि गाज़ीपुर के गवर्नर थे, उनको जो है इब्राहिम ने ऑर्डर किया कि आप जा कर के दरिया खान पर अटैक करो, लेकिन इन्होंने जो है ये निकले तो थे सुल्तान के ऑर्डर पर, बट एंड में ये सुल्तान के ही अगेंस्ट हो गए और खुद भी सुल्तान के अगेंस्ट आ गए रिवोल्ट में।
दरिया खान लोहानी जो कि बिहार के ही रूलर थे, इनके मरने के बाद जो है बहादुर खान जो है उनको जो है बिहार का सुल्तान बना दिया गया और उनको टाइटल दिया गया मोहम्मद शाह का, और बहादुर खान के नाम के सिक्के चले। दूसरे रिबेल्स जो हैं वो इस बात से जो है इमीडिएटली फ्लॉक टू हिज कोर्ट एंड द रैंक ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस स्वेल टू ओवर 1 लाख। ऐसे में क्या हुआ कि दूसरे रिबेल्स भी जो हैं वो धीरे धीरे उनके फोर्सेस में चले गए, और क्या हो गया कि धीरे धीरे उनके जो रिबेलियंस जो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट दरिया खान तो मर गए, उनके जो मोहम्मद शाह हैं मतलब बहादुर खान जो बाद में राजा बने, तो ये लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगा क्योंकि बाकी लोग भी परेशान थे इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी इन रिबेल्स के अगेंस्ट शायद ही कुछ कर पाए, लाखों लाख की इनकी सोल्जर हो गई थी। Ibrahim Lodi could do pretty little against the rebels, and the eastern half of the kingdom, including the erstwhile state of Jaunpur, was cut off from Delhi. इसके बाद फिर क्या हुआ? Though deprived of his dominion, Ibrahim Lodi might have survived as the ruler of Delhi, albeit the rebellious attitude of Afghan nobles of Punjab and the new political development in northwestern region ruined him. फिर भी इनके नोबल्स भी रिबेल कर गए, फिर भी ये दिल्ली में बच जाते, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का पॉलिटिकल सिनेरियो इसी वक्त बदल रहा था। पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैड बीन इंटरेस्टेड टू देयर किन्समैन by the Lodi Sultan. Tatar Khan, the governor of Lahore, was a cousin of Sultan Bahlol Lodi. Tatar Khan's son Daulat Khan Lodi, the hereditary governor of Lahore, was a seasoned soldier who possessed 80,000 strong army and huge purse. Sultan Ibrahim Lodi felt annoyed with him owing to the fact that he had failed to present himself at the court at the time of the former's coronation, apparently because of his advanced age. तो क्या हो गया ना, इसी समय पंजाब में अलग सिनेरियो चल रहा था। जब बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी को स्थापित किया था, तभी क्या किया था कि उन्होंने अपने चचेरे भाई ततर खान को जो है लाहौर का गवर्नर बनाया, और ततर खान के बेटे जो दौलत खान लोदी थे वो उन्होंने जो है अपने पिता से गवर्नरशिप लिया। दौलत खान लोदी के पास 80,000 की आर्मी थी और बहुत पैसे थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है दौलत खान से बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि दौलत खान जो है वो इब्राहिम लोदी के राज्य अभिषेक के वक्त जो है उनको उनके पास नहीं आ पाए, क्योंकि वो उनकी एज भी हो गई थी, तो इस वजह से जो है उनको दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को नहीं पसंद थे। Ill treatment of Daulat Khan's son Dilawar Khan by Sultan alarmed the crafty governor of Lahore to make arrangement for his self defense. और जो दिलावर खान थे, जो दौलत खान के बेटे थे, उनके साथ जो है इब्राहिम लोदी ने बड़ा गंदा ट्रीट किया। इससे जो है दौलत खान को लगा कि नहीं, अब सेल्फ डिफेंस करने का वक्त आ गया, सेल्फ डिफेंस को तैयार रखना होगा। आलम खान लोदी जो कि दीपालपुर के गवर्नर थे और मैटरनल अंकल थे इब्राहिम लोदी का, वो जो है वो अपना क्लेम प्रेफर कर रहे थे दिल्ली के थ्रोन को। He had his supporters among disaffected courtiers of the capital. तो कैपिटल में जो भी लोग इब्राहिम लोदी से दुखी थे, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो आलम खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी के ही मैटरनल अंकल मामा थे, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। पंजाब was thus in an open revolt against Ibrahim Lodi when बाबर appeared on the scene. इस वक्त ही इसी के आसपास जो है वो बाबर आएंगे हिंदुस्तान के सीन में, और इसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि पंजाब जो है वो अगेंस्ट है ना। कहाँ आलम खान लोदी जो है वो बोल रहे हैं कि मैं ही दिल्ली में रूल करूँगा, और दौलत खान लोदी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी अच्छे रिलेशंस है नहीं इब्राहिम लोदी के साथ। तो पंजाब जो है वो दिल्ली के टोटल अगेंस्ट है। ऐसे वक्त में बाबर जो है वो इंडिया के सिनेरियो में आते हैं। Illustrious descendant of Amir Timur and Genghis Khan lost his foothold in his ancestral land of Central Asia, but conquered Kabul in 1504 by a stratagem and established himself as the king of Afghanistan. तो क्या हो गया, बाबर क्यों आते हैं इंडिया, इसके पीछे भी रीज़न है। इनका जो सेंट्रल एशियन एम्पायर होता है वो इनके लोग इनसे छीन लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम एज में इनके पिता की डेथ हो जाती है, महज 14 साल में, और फिर उसके बाद जो है बाबर अपने पोजीशंस बचा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबर जो है वो क्या करते हैं, वो काबुल को कॉन्कर कर लेते हैं और ख़ुद को जो है अफ़गानिस्तान का राजा बना लेते हैं। इसी समय जो है बाबर जो है वो सोचते हैं 1519-20 के समय में ही कि वो इंडिया पर भी कॉन्कर करें, और इंडिया पे 5 मिलिट्री एक्सपीडिशंस वो जो है पंजाब में एक के बाद एक लीड करते हैं।
Caught between the two wall hand, Ibrahim Lodi from Delhi and Babur from Kabul, the self-seeking Afghan nobles of Punjab attempted to save their skins from each. It led to what is called triple conquest for political supremacy in Punjab. तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2-4 प्रॉब्लम्स आ गए, क्रिएट हो गए. इब्राहिम लोदी जो है वो एकदम चक्कर में फंस गए थे. कैसे? एक तो बाबर का प्रॉब्लम था, दूसरा पंजाब में इश्यूज़ चल रहे थे, तीसरा उनके नोबेल्स भी उनके अगेंस्ट थे. तो वो किसको संभालते? ये पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया. बाबर केम आउट विक्टोरियस इन द स्ट्रगल, और इन सब के स्ट्रगल में कि नोबेल्स जीत करके बन जाएं दिल्ली के राजा, या फिर इब्राहिम लोदी ही रहें, या फिर पंजाब के लोग बन जाएं, इन सब में बाबर जीत गए. और उन्होंने जो है धीरे धीरे पहले पंजाब के लोग में, पंजाब में एक्चुअली पंजाब में भी लड़ाई चल रही थी और नोबेल्स भी पंजाब में जो है वो भी सोच रहे थे कि कौन जीते, लेकिन फाइनली जो है वो बाबर जो है वो पंजाब में विक्टोरियस हो जाते हैं और वो पंजाब को कॉन्कर कर लेते हैं अफ़गान नोबेल्स को वहाँ पर हरा करके. उसके बाद बाबर जो है किल्ड इब्राहिम लोदी एट द हिस्टोरिक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन अप्रैल 21, 1526. उसके बाद जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और 21 अप्रैल 1526 में जो है पहला बैटल ऑफ पानीपत, पहली पानीपत की युद्ध में वो जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और मुग़ल डायनेस्टी जो है वो भारत में बना लेते हैं. सल्तनत ऑफ दिल्ली जो है इसके साथ ख़त्म हो जाता है और इब्राहिम लोदी जो है उनका भी रूल जो है एंड हो जाता है. और इब्राहिम लोदी के एंड होते ही जो है सल्तनत ऑफ दिल्ली भी ख़त्म हो जाता है. इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक है कि कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.